Good morning, students. Let's see our another poem from First Flight, The Tale of Coaster the Dragon. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. Ogden Nash has written a poem about a little girl, Belinda, who owns many pets, namely a black kitten named Ink, grey mouse named Blink, yellow dog named Mustard, and a coward dragon named Custard. The poet has described every character to be brave except the dragon, who is coward. But the whole situation changed when a pirate attacked Belinda's house. No one else had the guts to face him. It was the dragon that killed the pirate. All the characters are happy because they are saved by the dragon, but quickly change their thoughts and describe themselves to be more powerful had the situation not been so confusing for all of them. तो पोएट जो है जिन्होंने पोएम लिखी हुई है वो एक लिटिल गर्ल बिलिंडा के लिए लिखी है, बिलिंडा के ऊपर लिखी हुई है, जिसके पास बहुत सारे पैट है. जैसे कि अगर हम बोले तो ब्लैक किटन है जिसका नाम इंक है, ग्रे माउस है जिसका नाम ब्लिंक है, येलो डॉग है जिसका नाम मस्टर्ड है, और एक कावर्ड ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है. तो पोएट यहाँ पे ना डिस्क्राइब करती कि जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ब्रेव है, एक्सेप्ट ड्रैगन जो है वो बहुत कावर्ड बताया गया यहाँ पे कि वो जो है डरपोक है. तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब पायरेट जो है वो बिलिंडा के हाउस पे जो है अटैक करता है और किसी में इतने गट्स नहीं होते कि वो उसको फेस कर सके, लेकिन ड्रैगन क्या करता है उस पायरेट को मार देता है. तो सारे कैरेक्टर्स जो है वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि ड्रैगन ने उनकी लाइफ बचा ली होती है, लेकिन सडनली जो है वो अपने थॉट्स चेंज करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं कि वो उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है ड्रैगन से. तो अब हम एक्सप्लेनेशन में जाते हैं स्टैंजा वाइज. स्टैंजा नंबर 1. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really trolio little pet dragon. The poet says that once there was a little girl named Belinda. She lived in a little white house. She lived with some creatures who were her pets. They were a black kitten, a grey mouse, a yellow dog, a little red wagon, and a creature that the poet says was really and truly a dragon. तो पोएट यहाँ पे ना डिस्क्राइब करते हैं कि एक लिटिल गर्ल है जिसका नाम बिलिंडा है, जो कि एक लिटिल वाइट हाउस में रहती है और उसके पास बहुत सारे अलग अलग क्रीचर्स है जिनको उसने पेट बना के रखा है. जैसे कि एक ब्लैक किटन है, ग्रे माउस है, येलो डॉग है, एक रेड वैगन है और एक क्रीचर है जो कि ड्रैगन है. स्टैंजा नंबर 2. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was coward and she called him Custard. The poet explains the name of all the animals that are termed by Belinda. He says that the name of black kitten is Ink, the name of grey mouse is Blink, the little yellow dog had yellow color and so she calls him Mustard, and the dragon that was a covered means was a winkling was called Custard. तो पोएट यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं जितने भी पैट्स जो है जिनके नाम बिलिंडा ने रखे हुए. जैसे कि ब्लैक किटन है तो उसको इंक कहती है, ग्रे माउस है उसका नाम ब्लिंक है, येलो डॉग है उसको मस्टर्ड कहती है, और ड्रैगन जो कि बहुत डरपोक है उसका नाम रखा होता है कस्टर्ड. Stanza number 3. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Relalio Trullalio daggers on his toes. The poet describes the dragon that it had big sharp teeth and spikes on top. This means that its skin was pointed on the top. On the lower part
it had scales which were bony plates to protect the skin. His mouth has been compared to a fireplace. Described, it is assumed that dragons can release fire from the mouth. Even his nose is compared to a chimney, which is used to pass out smokes. His feet are like a sharp knife, a dagger. तो पर यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि ड्रैगन जो है उसके जो है शार्प टीथ है और उसकी टॉप पे जो स्पाइक्स लगे हुए हैं. दैट मीन्स कि उसकी स्किन जो वो पूरी पॉइंटेड की गई है टॉप तक, और लोअर पार्ट जो है वो पूरा स्केल है और एक बोनी प्लेट्स जैसा है जो कि उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. और उसके माउथ को कंपेयर किया है फायर प्लेस से. कैसा इंज्यूम किया जाता है कि ड्रैगन जो है वो अपने माउथ से जो है फायर जो है रिलीज कर सकता है. और एक और चीज़ जो कंपेयर की गई कि उसकी नोज़ जो है वो चिमनी से कंपेयर की गई है, जिसमें से जो स्मोक जो है वो पास आउट होगा. और उसकी जो फीट जो है वो शार्प नाइफ जैसी है, यानी उसके जो पैर जो है नीचे के वो शार्प नाइफ जैसे हैं. स्टैंजा नंबर 4. बिलिंडा वॉज अ ब्रेव एज अ बैरल full of beers and ink and blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe case. So now the poet explains the inner strength or the bravery of various characters of the poem. He says that Belinda was as brave as a group of bears, and Ink and Blink were so brave that they could hunt lions. So here he has shown the bravery of the kitten and the little mouse that could hunt even a lion. The dog was very brave, just like an angry tiger. But to contrast of all of them was Custard. Custard the dragon wasn't brave, as was so afraid of everything that he always demanded a safe cage. तो यहाँ पे पोएट एक्सप्लेन करते हैं इनर स्ट्रेंथ जो है वो वेरियस कैरेक्टर की इस पोएम के अंदर. वो ऐसा कहते हैं कि बिरिंडा जो है वो इतनी ताकतवर है जैसे कि कोई ग्रुप ऑफ बियर्स का हो तो वो इतनी ताकतवर है. इंक और ब्लिंक जो है वो इतने ताकतवर है कि वो लॉयन का जो है हंट कर सकते हैं. दैट मीन्स कि लॉयन का शिकार कर सकते हैं. और यहाँ पर जो है किटन जो है और लिटिल माउस जो है उनको भी इतना ब्रेव बताया है कि वो लॉयन का जो है शिकार कर सकते हैं. और डॉग जो है उसको इतना ब्रेव बताया कि वो एंग्री टाइगर जैसा है. लेकिन इन सब के ओवरऑल अगर हम बात करें तो कस्टर्ड जो है ड्रैगन जो है उसको इतना ब्रेव नहीं बताया. उसे जो है डर लगता है इन सारी चीज़ों से, इसलिए वो हमेशा क्या डिमांड करता है कि उसे एक सेफ केज दिया जाए जिसमें वो रह सके. स्टैंजा नंबर 5. Belinda trickled him, unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon, and Trulalio, cowardly dragon. Belinda used to stalk the dragon in a very cruel way. Ink, Blink, and Mustard made fun of him by comparing him to a knight named Percival, who was thought to be brave but ran away due to lack of courage. They used to tease the dragon while sitting in their little wagon. तो यहाँ पे बिलिंदा जो है वो ड्रैगन को जो है बहुत क्रूरली वे से जो है उसको ट्रीट करती है, और इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वो उसका मजाक बनाते रहते. तो कहते कि तुम जो हो किसके जैसे हो, तो तुम नाइट नेम्ड पर्सिवल जैसे हो, जो कि ब्रेव तो है लेकिन जब वक्त आता है जब लड़ाई करने का तो वो जो है भाग जाता है हमेशा. और वो जो है ड्रैगन को हमेशा जो है जो रेड वैगन जो है उसको हमेशा जो है टीस करते रहते, उसको तंग करते रहते कि तुम जो है कोने में बैठे रहो क्योंकि तुम में इतनी बहादुरी नहीं है. स्टैंजा 6. Belinda giggled till she shocked the house, and Blink said, "Vrick," which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice
for a nice, safe cage. The poet says that Belinda used to laugh so loudly that her voice echoed in the house. Blink, the mouse, used to laugh and make a sound of wick. On the other hand, Ink and Mustard would tease him by asking the dragon his age whenever he used to demand for a nice, safe cage. तो पोइट यहाँ पे कहते हैं कि बिलिंडा जो है वो इतना ज़ोर से हंसती है कि उसकी आवाज़ जो है पूरे घर में सुनाई देती है इको साउंड की वजह से। ब्लिंक जो है, जो कि माउस जो है, वो भी हंसता है और उसका जो साउंड जो होता है वो विक जैसा निकलता है। और अदर हैंड अगर हम बात करें तो इनको मस्तद जो है वो तंग करने में लगे रहता है ड्रैगन को, और उससे उसकी एज पूछते हैं। और ड्रैगन जो है हमेशा डिमांड करता है कि उसे एक नाइस सेफ केज चाहिए जहाँ पे वो सेफली रह सके। स्टैंजा नंबर 7। Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled and they all looked around. Mouch, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. So while all of them were making fun of the dragon, they heard a sound of someone entering the house. When they looked towards the window, they saw a pirate climbing up the wall. The dog barked at him and kitten meowed to him. Belinda cried, oh, because all of them were scared of the pirate. तो हर कोई जब ड्रैगन का मजाक बनाने में लगा रहता है तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि कोई जो है घर के अंदर एंटर कर रहा है। और जब वो लोग देखते हैं विंडो में से तो पायरेट जो है क्लाइम कर रहा होता है उनके वॉल पे घर के अंदर आने के लिए। तो जो डॉग जो है मस्टर्ड वो भौंकने लगता है और किटन जो है वो मियाओ करने लगती है। बिलिंडा जो है रोते रोते ओह करती है क्योंकि हर कोई जो है पायरेट को देखकर डर गया होता है। Stanza number 8. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he hurled in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. The poet describes the appearance of the pirate. He says that the pirate was holding handguns in both his hands and had a little sword too. He was holding his sword with his teeth. He had a black beard and his one leg was made of wood. This means that though the pirate was a disabled person, but still he was frightening all the other कैरेक्टर्स, मोर एवर ही इंटेंडेड टू हार्म देम। तो पोइट यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं अपीयरेंस जो होता है पायरेट का। तो बताते हैं पायरेट जो है उसके दोनों हाथों में गन है और उसके पास जो है एक तलवार भी रखी हुई है। स्टैंजा नंबर 10 देख लेते अब हम। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, नॉथिंग लाइक एन इंजन, क्लैश हिज टॉल tail like irons in a dragon, with a kettle and a clank and a juggling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. When all the other characters that were earlier defined as very brave got frightened, the dragon did the most unexpected thing. He jumped onto the pirate and made such a strong sound with his nose as if the engine was producing a sound. Not only this, he hit his tail on the ground with great force that is produced a heavy sound of metal being rubbed against each other in the underground prisons. He attacked the pirate just like Robin Bird that attacks the worms. तो जहाँ पे जितने भी कैरेक्टर जो थे वो ये बोल रहे थे कि वो सबसे ज़्यादा ब्रेव हैं, लेकिन जब वो बहुत डर गए तो ड्रैगन ही था जिसने अनएक्सपेक्टेड थिंग की थी। उसने सीधा पायरेट के ऊपर जंप किया और एक स्ट्रॉन्ग साउंड निकला नोज़ में से, जैसे कोई इंजन प्रोड्यूस हुआ हो वैसा। खाली यही नहीं, उसने अपनी जो टैल जो थी, अपनी पूँछ जो थी, उसको ग्राउंड में इतनी ज़ोर से उसने पछाड़ा कि जिस तरह से कोई हैवी साउंड निकला, मेटल कोई गिरा हो अंडरग्राउंड पे। यानी प्रिजन जो है जब भी कुछ भी कोई
जेल में जो होता है वो अगर कोई भी चीज़ तोड़ के भाग रहे होते तो जिस तरह से वो साउंड होता है उस तरह से वैसा हुआ और उसने सीधा पायरेट पे अटैक किया, जैसे कि कोई बर्ड जो है वो वर्म्स पर अटैक करती हैं। Stanza number 11. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custer grabbed him every beat. The pirate got so shocked by the dragon's reaction that he opened his mouth wide with shock. To gather some strength, he drank some alcohol from a container in his pocket. After getting some courage, he fired 2 bullets on the dragon but missed it. Cursed the dragon ate every beat of this fierce-looking pirate. तो पायरेट ड्रैगन के इस रिएक्शन को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो गया और फिर उसने अपना जिस तरह से उसने अपना मुंह खोला क्योंकि वो शॉक हो चुका था और उसने हिम्मत दिखाने की किया कि अपनी पॉकेट में से अल्कोहल निकाला उसका कंटेनर और थोड़ा सा उसने पिया। उसके बाद उसको थोड़ा हिम्मत मिली तो उसने 2 बुलेट जो है फायर के ड्रैगन पे, लेकिन वो मिस हो गए और ड्रैगन जो है उस पायरेट को मार के खा गया। Stanza number 12. Belinda emborsed him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate wisdom. Ink and blink in blade did right around the dragon that ate the pirate. When the pirate was dead, Belinda hugged the dragon and Mustard licked him. No one was sad for the death of the pirate. They all were happy. Both Ink and Blink were running around the dragon in happiness. So here the poet says that all the characters were happy and they were showing their gratitude toward the dragon as he had saved them. तो पायरेट के मरने के बाद जो है बिलिंडा ने जो है ड्रैगन को हग किया और मस्तद जो है जो कि डॉग जो था वो उसको लीक करने लगा, लेकिन कोई भी जो है दुखी नहीं था पायरेट के मरने पे, लेकिन सब जो थे बहुत खुश थे। लिंक और ब्लिंक जो थे वो भागते हुए आए ड्रैगन के पास और अपनी खुशियाँ जाहिर करने लगे। उनके आसपास में ड्रैगन के वो गोल गोल घूमने लगे और पोएट यहाँ पे कहते कि सारे के सारे जो कैरेक्टर थे वो बहुत हैप्पी थे और अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रहे थे ड्रैगन की तरफ कि उन्होंने उसको सेव कर दिया। Stanza number 13. But presently up spoke little dog Mustard, I'd have been twice as brave if I hadn't been frustrated. And up spoken Ink and up spoke Blink, we'd have been 3 times as brave we think. And Costa said, I quite agree that everybody is braver than me. After they thanked and showed their love towards the dragon, they changed their mind. They were reminded of how they used to make fun of this coward dragon. And now they all were pressing him. So at once the dog said that it was just because of some confusion that he wasn't able to do anything, otherwise he would have been twice as brave as Custard. Both Ink and Blink also said that they would have been 3 times braver than Custard. To this the dragon said that he fully agreed to this, that all of them were more powerful and braver than him. तो थैंक यू बोलने के बाद सडनली जो डॉग जो है उसको याद आया कि वो जो 2 टाइम्स ब्रेवर है कस्टर्ड से, और इंक और ब्लिंक जो है उन्होंने भी ये बोला कि वो कस्टर्ड से जो है 3 टाइम्स ज़्यादा ब्रेवर है, यानी कि वो 3 गुना ज़्यादा उससे शक्तिशाली है। और कस्टर्ड जो था वो एग्रीड हुआ इन सारी चीज़ों को लेकर कि वो उनसे ज़्यादा पावरफुल है और ब्रेवर है उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि वो जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वो ड्रैगन से कहीं ज़्यादा पावरफुल और ब्रेवर है। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her Rilario little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as tiger in the range.
but Custard keep crying for a nice safe cage. At last, the poet used the same lines again to show that after this terrific episode in which the dragon was the hero, where all the other characters still undermined him by saying that they were more powerful than him and could have handled the situation in a much better way. The poet says that life started again in the same manner. तो यहाँ पे पोएट जो है वापस से सेम लाइन बोलते हैं और ये बताते हैं कि जो टेरिफिक एपिसोड जो हुआ था जिसमें ड्रैगन जो है वो एक हीरो बन के आया था, तो बाकी जो कैरेक्टर जो थे वो अपने आप को अंडरमाइन करते और ये कहते हैं कि वो उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है और वो इस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकते थे अच्छे बेटर वे में। और पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जो लाइफ जो है वापस से सेम मैनर में स्टार्ट हो जाती है। बिलिंडा स्टिल लिव्स इन दैट लिटिल वाइट हाउस विथ इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी ब्रेव, whereas the dragon is still a coward who always wants to stay safe in his cage. तो वापस से बिलिंडा जो है अपने छोटे से लिटिल जो वाइट हाउस है वहाँ पे इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड और कस्टर्ड के संग रहती है और ये इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वो कहीं ज़्यादा अपने आप को ब्रेव बताते हैं ड्रैगन से और ड्रैगन को वो अभी भी जो है कावर्ड ही मानते हैं जो कि हमेशा सेफ केज के अंदर ही रहना पसंद करता है। और अब हम जाते हैं इसके पोएटिक डिवाइस में। तो स्टैंजा नंबर में जो पोएटिक डिवाइस है जिसमें हम फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे तो लिव्ड इन अ लिटिल वाइट, तो LL, लिटिल ग्रे माउस, लिटिल रेड वैगन, तो ये सब क्या रिपीटेशन है क्योंकि लिव्ड, लिटिल, लिटिल, लिटिल जो है वापस से रिपीट हो रहा है इसलिए वो जो है रिपीटेशन है। पैट ड्रैगन वो ऑक्सीमोरम है, यहाँ पे अपोजिट बोला गया। ऑक्सीमोरम यानी कि जो हम कहते हैं ना कि अपोजिट होता है जो वर्ड उस पर कि ड्रैगन कभी पैट नहीं हो सकता, राइट, उस तरह से। अब हम जाते हैं एक और चीज़ पे, एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ रिरालियो। ट्रुलालियो जो है वो है एनाफोरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड जो है एंड वो रिपीट हुआ है, वो स्टेंजा में स्टार्ट हुआ है एंड से ही, एंड तो वो एनाफोरा है जो कि रिपीट करता है कॉन्स्टेंटली, एक ही वर्ड जो है बार बार स्टेंजा में आते हैं। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। एज मस्टर्ड को सिमिली माना है और वॉज अ कवर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। एलिस्ट्रेशन क्योंकि अब सी जो है रिपीट हुआ है, कवर्ड, कोल्ड, कस्टर्ड, डी। एंड अगेन तो वो है एनाफोरा। स्टैंजा नंबर 3, चिमनी फॉर अ नोज वो है मेटाफर। माउथ लाइक अ फायर प्लेस वो है सिमिली। बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, अगेन सिमिली। एलिस्ट्रेशन और एसोनेंस भी है। कैसे है तो मैं आपको बता देता हूँ कि बिलिंडा में एलिस्ट्रेशन किस तरह से है, तो बी आ रहा है। एसोनेंस यानी जिसमें वोवेल साउंड आते हैं, ई, ए, ये आई में नहीं आ रहा है इसलिए ए में आ रहा है, ई में आ रहा है, तो वो एसोनेंस है। स्टैंजा नंबर 5 में हम देखते हैं अब, तो इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, तो वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि वहाँ पे जो है कस्टर्ड को जो है एक नाइट जो सोल्जर जो होता है उसका जो है उससे कंपैरिजन किया तो इसलिए वो पर्सोनिफिकेशन है। एंड ब्लिंक सेड विक विच गिगलिंग फॉर अ माउस, तो वो है एनोमोटोपिया, क्योंकि एक साउंड जो माउस निकालता है वो है, तो यहाँ पे साउंड की बात हुई है इसलिए। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, तो वो है हमारा रिपीटेशन, क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो रिपीट हो रहा है इसलिए, तो वो रिपीटेशन है। स्टैंजा नंबर 7, सडनली
सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, तो वो क्या है, कॉन्सोनेंस है, एस 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 एस। एंड मस्टर्ड ग्लोड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, म्याउच क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बिलिंडा। एनोमोटोपिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साउंड की बात हो रही है इसलिए। स्टैंजा नंबर 8, His breed was black, one leg was wood, तो वो क्या है, एलिस्ट्रेशन है, बी 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 बी, इसलिए। स्टैंजा नंबर 9, हेल्प हेल्प, रिपीटेशन है। टेरिफाइड येल्प, वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट मीन्स जहाँ पे नाउन या प्रोनाउन जो है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। नॉथिंग लाइक एन इंजन, तो कोस्टर्ड का जो बोला गया था, प्लस हिज टेल लाइक आयंस, और पायरेट लाइक अ रोबन एट अ वॉर्म, सिमिली है। विथ अ कैटल एंड अ क्लैंक एंड अ जैगलिंग स्क्रीम, वो क्या है, ओनोमोटोपिया, क्योंकि वो साउंड है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो है। स्टैंजा नंबर 11, ग्लब्ड सम ग्रोक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, तो वो क्या है, एलिस्ट्रेशन, जी जी जी। नो वन माउंड फॉर हिज पायरेट विजडम अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, तो वो क्या है, एसोनेंस, क्योंकि ओ ओ ओ साउंड, ए साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। एसोनेंस मीन्स जहाँ पर वॉवेल्स आते हैं। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड ग्रेट, वो है एलिस्ट्रेशन की, क्या पे जी जी ई जो है वो रिपीट हो रहा है, और डी डी भी रिपीट है। स्टैंजा नंबर 13 में कुछ भी नहीं है, फिगर ऑफ स्पीच। स्टैंजा नंबर 14 का जो फिगर ऑफ स्पीच है वो रिपीटेशन है, क्योंकि सेम स्टैंजा हमने स्टैंजा नंबर 1 में देखा था, वो स्टैंजा नंबर 14 में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आपकी जो पोएम है द टेल्स ऑफ कोस्टर्ड ड्रैगन, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्यूरी, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।